So Namaskaram and good evening all. We are starting a new chapter today, assessment of various entity, and in particular chapter, assessment of various entity, we are starting assessment of business trust, my dear friend. Okay. And the flagship section here, the main section of assessment of business trust is section 115 UA of Income Tax Act. So before we go into technical aspect, let us have a general understanding what exactly do we mean, what it means by business trust. So आप लोगों को एक बात तो पता होनी चाहिए, and that is whenever we use word trust, whenever we use word trust, we usually feel trust means a non-profit making organization. It's non-profit making organization. That's a trust. That is also there in our syllabus, but that trust is covered by section 12, AA, those sections, section 12, section 11, section 13. There are a series of sections. Okay. So we are not talking about this trust or charitable trust. We are talking about a business trust. Sir, when I say business trust, आप लोग मुझे इतना तो बता दो, इसका प्रॉफिट मोटिव होगा कि नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा? मोटिव क्या होगा इसका? जब आप बिजनेस वर्ड लगा देते हो किसी भी वर्ड के पीछे, तो बिजनेस का क्या होगा? मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट और एनपीओ. वेरी गुड अमय, अक्षता नाइस, पुरुषोत्तम वेरी गुड, राम राइस. So sir, this is the profit motive trust. So that's one thing that you need to understand. Business trust is not a charitable organization. Business trust is a profit oriented organization, and they are looking forward to make huge profit. Huge means huge profit. Okay. So what do you mean by business trust? So let us talk about, there are two types of business trust that we will discuss in income tax. A first type of business trust, which is known as InvIT. According to SEBI's law, according to SEBI, Securities Exchange Board of India's law, there is something called InvIT. So what is InvIT? InvIT is Infrastructure Investment Trust. Infrastructure Investment Trust is needed in India because India's infrastructure is still has a lot of improvement to happen. We are still poor in infrastructural development. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें इंफ्रा डेवलप करना है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेवलपिंग इंफ्रा ऑफ इंडिया, यू रिक्वायर करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज. नाउ फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग दिस करोड्स ऑफ रुपीज? सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू प्ले द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब प्राइवेट सेक्टर के पास भी पैसे कहां से आएंगे? अवर बैंक्स आर नॉट हैविंग इनफ मनी टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा ऐसे लगता है 10,000 करोड़, 20,000 crore, 50,000 crore. So banks are not having that kind of liquidity to fund infrastructure projects or take the risky project in hand. तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आप एक क्या करो, एक म्यूचुअल फंड जैसा एक म्यूचुअल फंड बना दो इनविट के नाम का. ये क्या करेगा? ये मार्केट में बॉन्ड इश्यू करेगा. And these bonds will be accessible not only by Indians but also by the international players. और इस bonds में दुनिया भर के पैसे आएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे. Because people are having a lot of money to invest. They are just looking forward to have a better opportunity where they can invest and from where they can get better returns. So business trust is one of the secured mode of investment because SEBI directly controls it. Apart from that, because they invest in infrastructure, which is a growing sector in India, तो हम चाहते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में लोगों का इन्वेस्टमेंट आ जाए. So it is like a mutual fund. For your basic understanding, you need to understand InvIT is like a mutual fund. Infrastructure Investment Trust is a collective investment. Collective investment मतलब बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें. Collective investment scheme similar to mutual fund, which enables direct investment of money from individuals and institutional investors in infrastructure projects to earn small portion of the income as a return. तो आपका जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में आपका पार्टिसिपेशन हो जाता है. दैट्स अ मेन इनकम फॉर यू. सो दिस इज इनविट. एंड सिमिलरली वी आर हैविंग रीट इन इंडिया. नाउ रीट इज वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन नाउअडेज. ठीक है ना? एक फिनेंस मार्केट में रीट इज वेरी 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 फेमस कॉन्सेप्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय रीट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. Real estate investment trust is known as REIT. REIT is a type of real estate company
which operates like a mutual fund. Again, mutual fund pulls money from different investor and used to purchase of financial securities like stock, governments, bonds, etc. वो तो म्यूचुअल फंड की बात की हमने. अब मुझे एक बात बता दो, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा अच्छा है ना. एवरीबडी वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, एम आई राइट? आपको भी एक घर लेना है, जमीन लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ना, सबको इन्वेस्ट करना है, राइट? डू यू वांट योर ओन हाउस? डू यू वांट योर ओन लैंड? डू यू वांट टू गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग रियल एस्टेट मार्केट? आप अभी का छोड़ दो, ये लास्ट 2-3 सालों में कोविड की वजह से, जीएसटी की वजह से some negativity has happened to the sector, but overall the sector has grown because where you are staying right now, 10 years back, 15 years back जो रियल एस्टेट का प्राइस था और अभी जो रियल एस्टेट का प्राइस है, आपने अपने नजरों से देखा हुआ है. 3 से 5 लाख का जो फ्लैट था, जो 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट हो चुका है, मे बी उससे ज्यादा ही हुआ रहेगा. तो यू नो दैट रियल एस्टेट सेक्टर इज हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल्स एंड इट ग्रोज और लॉन्ग टर्म इट डेफिनेटली ग्रोज. लेकिन क्या हम लोगों के पास इंडिविजुअली बोलो 2-2 करोड़ इन्वेस्ट करने जितना पैसा है क्या? 2 करोड़ 5 करोड़ इतना पैसा है क्या? 200 लाख 500 लाख, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी राइट नाउ विद अस? नहीं सर, हमारे पास नहीं है और इमीडिएटली शायद आएगा भी नहीं. आने वाले 2 सालों में 3 सालों में शायद इतना पैसा हमारे पास ना आए कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाए. बट सर वी डोंट वांट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग मार्केट. तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक म्यूचुअल फंड बना सकते हैं ना. हम समझो 1000 लोग साथ में आ गए, अराउंड 1000 पीपल वी केम टुगेदर, और ये सारे लोगों ने मिलकर हमने क्या किया? एक म्यूचुअल फंड बनाया जिसका नाम बिजनेस ट्रस्ट लग दिया. और ये म्यूचुअल फंड फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है ना. हेलो, ये म्यूचुअल फंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है ना. हम इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे. यू एंड मी इंडिविजुअली कैन नॉट डू. आपको ये, आपने वो सेंटेंस सुना है ना, देयर इज अ पावर इन यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी. बाबा इंडिविजुअली हमारी ताकत नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, बट थाउजेंड्स ऑफ अस, किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट किया, somebody invested 25 lakh, somebody invested 50 lakh. Cumulatively we can invest in best of the best projects. तो ये बातें यहाँ पे हो रही है. तो ये जनरल नॉलेज आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज नहीं है, ठीक है ना. सेलिएंट फीचर्स ऑफ रीट. सर फीचर्स ऑफ रीट क्या होते हैं? तो कुछ गाइडलाइंस सेबी की, कुछ हम रूल्स पढ़ रहे, जरूरी नहीं एग्जाम के लिए आप याद रखो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है रीट. मिनिमम साइज ऑफ रीट शुड बी 500 करोड़. मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल फंड, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज फंड. 500 करोड़ तो मिनिमम साइज बता रहा है. इट कैन बी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़. द इनिशियल पब्लिक ऑफर साइज शुड बी मिनिमम 250 करोड़. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अगर आप रीट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर. मिनिमम पब्लिक होल्डिंग शुड बी 25%, not less than 80% of the value of the REIT asset should be invested in a completed and income generating properties. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, इससे रिस्क कम हो जाता है. इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिस्क कम हो जाता है अपने प्रोजेक्ट का. ये क्या है मैं बता देता हूं. मुझे बताओ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रिस्की है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रिस्की है? विच इज मोर रिस्की, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी? विच प्रॉपर्टी इज मोर रिस्कियर, अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड? सर अंडर कंस्ट्रक्शन ज्यादा रिस्की है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, सेबी ने क्या बोल दिया इनको, कि आपका जो 80% का फंड है ना, 80% वो कंस्ट्रक्टेड, और कंस्ट्रक्टेड भी नहीं, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन करके रेडी रखा है आपने, रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब समझते हो? अगर ये मॉल है तो ये आपने लीज आउट किया हुआ है, वहां से रिटर्न आ रहा है. मतलब आपका 80% फंड ऐसे प्रॉपर्टीज में लगना है जहां पे रिटर्न्स आते हैं. हाँ, 20% का आप रिस्क लेके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में प्रोजेक्ट लगा सकते हो, बट मिनिमम 80% शुड बी इन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज. दिस इज हाउ दे कंट्रोल द रिस्क, दिस इज हाउ दे मिटिगेट द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट्स इन द प्रोजेक्ट. वो सारा नाटक ना हो करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे रीट के ऊपर ये कंडीशन लगाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. अप टू 20% ऑफ रीट एसेट शैल बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग. तो मैंने क्या बोला, ये तो 80% तो चला गया रेवेन्यू जनरेटिंग में, अब 20% कहां पे इन्वेस्ट करेंगे?
डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज वेदर डायरेक्टली और थ्रू द कंपनी और एलएलपी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हो, लिस्टेड अनलिस्टेड डेट कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर, आप दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप दूसरे कंपनी का इक्विटी शेयर भी परचेस कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी विच आर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज in which derive not less than 75% of their operating income from real estate. The company which derives substantial income from real estate, तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पैसा रियल एस्टेट में लगाना है, क्योंकि आपके यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको रियल एस्टेट मार्केट का एडवांटेज लेना था। तो ये सारी बातें लिखी है, इतना काम का नहीं है। Unlisted equity shares of the company which derives not less than 75% operating from real estate activity, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसे लगा सकते हो। Unutilized FSI of the project where it has already made investment, आपने जहां पे आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां पे एक नया बिल्डिंग बनने वाला है, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। TDR डेवलपमेंट राइट्स परचेस करने के लिए भी आप पैसे लगा सकते हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह में भी आप पैसे लगा सकते हो। और जो पैसा रीट कमाएगी, जो पैसा मार्केट में से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में से रीट कमाएगी, वो पैसा अपने पास रीट रिटेन नहीं करेगी। मिनिमम नॉट लेस देन 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज टू इट्स इन्वेस्टर एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। मतलब रीट जो पैसा कमाएगी, जो हमारा म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड हमारा जो पैसा कमाएगा मार्केट में से, उसका मिनिमम 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ऐसा इसका नियम है। तो ये हो गया बेसिक्स, जनरल नॉलेज की बात मैंने कर ली आप लोगों से। अब देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना। इसका ऑपरेशन देखो, मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल भी बता देता हूं कि इंडिया में एक बैंगलोर की कंपनी है जो रीट में है, क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा ग्रुप है, एम्बेसी ग्रुप करके है शायद। ये देखो एक एम्बेसी रीट करके बहुत बड़ी कंपनी है। आपने आजकल शेयर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट सुना है? शेयर्ड ऑफिस, अपने बीकेसी में एक वी वर्क करके कंपनी है, वी वर्क। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वी वर्क या शेयर्ड ऑफिस कॉन्सेप्ट? पता है कि आप लोगों को ये कोई कॉन्सेप्ट, शेयर्ड ऑफिस कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नहीं पता? अभी आजकल क्या हो गया है ना, देखो ऑफिस चलाओगे ना तो ऑफिस चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हाउस कीपिंग रखना पड़ता है, आपको इंटरनेट इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको कैफेटेरिया ढूंढना पड़ता है, आपके जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो वहां पे मीटिंग रूम्स नहीं हम रख पाते। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, वीवर्क जैसी, वीवर्क एक बहुत अच्छी कंपनी, मैं उस बिल्डिंग में पर्सनली बहुत बार जा चुका हूँ, वीवर्क में, बैंड्रा में, बीकेसी में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के ऑफिस मिलते हैं। जैसे अगर आप अगर सोलोप्रेनर हो, सोलोप्रेनर मतलब आप अकेले काम करते हो, यू आर इंडिविजुअल, ठीक है ना, और आपकी कंपनी में कोई नहीं है, तो आपको खाली एक टेबल और एक चेयर चाहिए, तो आप खाली एक टेबल और एक चेयर ले सकते हो। आप 4 लोगों का ग्रुप हो, आपको 4 लोगों के लिए ऑफिस चाहिए, तो आप 4 लोगों का ऑफिस ले सकते हो। आप अगर 12 लोगों का ऑफिस चाहते हो तो 12 लोगों का ले लो। आप अगर 30 लोगों का ऑफिस चाहते हो तो 30 लोगों का ले लो। तो अलग अलग लोगों की जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसकी तरह ऑफिस कस्टमाइज करके मिलता है इनको। एडवांटेज क्या है कि इनका सिक्योरिटी कॉमन है, हाउसकीपिंग कॉमन है, कैफेटेरिया कॉमन है, यहाँ पे बीच में कहीं पे तो कैफेटेरिया होता है, एंड टी एंड कॉफी अनलिमिटेड अवेलेबल होता है, टी कॉफी बिस्किट्स अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड अवेलेबल होता है। आपका क्लाइंट कोई आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कॉर्पोरेट्स में आके बैठा है, ऐसे उसका फील आता है। एंड जैसा एयरपोर्ट पे एम्बियंस होता है पूरा नीट क्लीन लाविश, वैसा एम्बियंस वो बना के मेंटेन करते हैं।
आपको खाली रेंट देना है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको फोटो प्रिंटर वहां पे, कॉपी मतलब जेरोक्स का मशीन वहां पे मिल जाएगा, आपको इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी, आपको डे नाइट आप काम कर सकते हो वहां पे, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना है। फिर क्या बोलते हो, आपको अगर मीटिंग लेनी है, कॉन्फ्रेंस लेनी है, तो हर फ्लोर पे कम से कम 3-3 4-4 मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं। आप और रूम बुक करके अपने हिसाब से फ्री में कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर सकते हो। फ्री मतलब ऑब्वियसली वो रेंट में इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है। तो इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट जो रीट चलाती है, ठीक है ना। तो एम्बेसी ग्रुप भी वैसा ही है। ये देखो ऐसे बड़े बड़े ऑफिस पार्क को बनाते हैं, ये देखो एम्बेसी रीट, तो एकदम बढ़िया ऑफिस पार्क बनाएंगे ये लोग। बहुत कुछ करते हैं। ये बेंगलुरु बुस कंपनी है, देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। तो हमारी इंडिया में भी रीट प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग चुके हैं रीट के थ्रू। ओके, तो देखते हैं रीट क्या करता है। टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर। तो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि पैसा कहां से कैसे जाता है। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले एक कोई स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर मतलब कोई एक मालिक समझो आप, बड़ा इंसान, बिल्डर, हीरानंदानी, रहेजा, ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम आपने सुना है। हीरानंदानी बिल्डर्स, रहेजा बिल्डर्स, ऐसी कोई एक फैमिली है जो बहुत बड़ी फैमिली है, रिच फैमिली है, एंड दे आर इनटू रियल एस्टेट। तो हाउ दे डू इट, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में विच इज नोन एज एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। सर इसको स्पेशल पर्पज व्हीकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है ना, ये एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। अगर समझो आपके लालबाग में अगर कल कल कोई एक 50 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आने वाला है, 50 बिल्डिंग्स का, तो रहेजा ग्रुप या हीरानंदानी ग्रुप या कोई भी बिल्डर जो आप लोगों को पता है बड़ा बिल्डर, ठीक है ना, डीएनबी ग्रुप, जो भी आप समझो, ठीक है, वो क्या करेगा, एक कंपनी बनाएगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और उसमें पैसे लगाएगा। उसकी बैलेंस शीट देखो कैसे दिखेगी, उसने खुद का शेयर कैपिटल लगाया हुआ है 100 करोड़ खुद का, और उसने बैंक से लोन लिया है 900 करोड़ का। जरा समझो हाँ कैसे कैश फ्लो कैसे जा रहा है। ये बंदे ने खुद का और अपने दोस्तों का वगैरह, फैमिलीज का वगैरह पैसा लेके 100 करोड़ खुद का लगाया हुआ है एंड 900 करोड़ का बैंक से लोन लिया हुआ है। और टोटल अभी प्रोजेक्ट के असेट की साइज है 1000 करोड़। 1000 करोड़ का वो लैंड है, बिल्डिंग है जिसका उसने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अभी बिजनेस ट्रस्ट मार्केट में आएगी। बिजनेस ट्रस्ट को हम नाम देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम रियल एस्टेट की बात करें तो रीट का नाम दे देते हैं। अब रीट मार्केट में आएगी, एक अलग जगह पे रीट इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ओके, अब वो रीट क्या करेगी, रीट मार्केट में बॉन्ड्स इश्यू करना चालू कर देगी और बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर रीट को पैसे दे देंगे अपने। तो रीट के पास एक 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसा अच्छा खासा फंड जमा हो गया। अब रीट क्या करेगा, रीट जाएगा स्पॉन्सर के पास और बोलेगा कि मुझे आपका प्रोजेक्ट टेक ओवर करना है। ये प्रोजेक्ट जो आपका है जिसमें आपका पैसा अटका पड़ा है, ठीक है ना, आपने 1000 करोड़ लगाए इसमें, उसमें के 100 करोड़ आपके हैं, 900 करोड़ बैंक का लोन लिया है, और बैंक का लोन वो भी 15% पर एनम पे लिया हुआ है। बैंक का लोन कितने रेट पे लिया आपने, 15% पर एनम, वेरी एक्सपेंसिव लोन लिया है। मुझे आपको इस प्रोजेक्ट में से मुक्ति दिलानी है, एट द सेम टाइम मेरे पास बहुत सारे पैसे मैं इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट आते हैं वो मैं ले लूंगा, और अगर आपको भी ये बेनिफिट एंजॉय करने हैं तो एक काम करो, आप भी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर बन जाओ। ये जो रहेजा ग्रुप है उसको बता दिया कि आप भी क्या करो, एम्बेसी ग्रुप है समझो, ये एम्बेसी ग्रुप को हमने बता दिया, आप भी क्या बन जाओ, एक बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर बन जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब स्पॉन्सर के पास ये 1000 करोड़ का इक्विटी शेयर है, मतलब मालिक, वो मालिक है उस कंपनी का, वो अपने शेयर्स दे रहा है। देखो यहाँ पे अपने शेयर्स दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है, अपना ओनरशिप बेच दे रहा है, किसको, बिजनेस ट्रस्ट को। उसके बदले में बिजनेस ट्रस्ट इसको पैसे भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, लेकिन कैश लेके करेगा क्या, ये इसको अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना था ना, तो बोलता है मुझे कैश नहीं चाहिए,
तो बिजनेस ट्रस्ट बोलती है ठीक है फिर हम आपको हमारी यूनिट्स दे देते, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। जरा समझने का ट्राई करो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट है, यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट है और यहाँ पे ये स्पॉन्सर है। ये अपने शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स है, जो कंपनी के एसपीवी में शेयर्स उसने लगा के रखे, वो बिजनेस ट्रस्ट को दे दिए। बिजनेस ट्रस्ट इसको अपनी यूनिट्स दे रहा है। इसको एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट बोलते हैं कैपिटल गेन चैप्टर में। मुझे बोलो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट क्या यूजुअली टैक्सेबल है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। मैंने शेयर्स दिए और आप लोगों से यूनिट लिए। आई हैव गिवन यू माई शेयर्स, पकड़ लो मेरे शेयर्स की कीमत 100 करोड़ थी, आपके यूनिट्स की प्राइस 250 करोड़ है। ऐसा हो सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकता है, निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड है वो। मुझे बोलो ये एक्सचेंज जो है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होना चाहिए ना यूजुअली। अरे मैंने आपको ज्वेलरी दिया, आपसे लैंड ले लिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट टैक्सेबल होता है ना। हाँ, तो वैसे ही ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स के बदले में जो यूनिट्स आए ना वो यूजुअली टैक्सेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट चाहता है कि स्पॉन्सर आगे आके अपने शेयर्स बेच दे यूनिट ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट को, और वहां से क्या कर ले, यूनिट्स ले ले। इसलिए गवर्नमेंट ने इस ट्रांसफर को 47 में रखा हुआ है। आपको याद आ रहा है क्या 47, सेक्शन 47? अरे आपको थोड़ा भी याद आ रहा है क्या सेक्शन 47? transaction which should not be treated as transaction which not regarded as transfer, और अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं बनाओगे तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा ना। हाँ, एग्जाम ट्रांसफर, वेरी गुड, हमें एग्जाम ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर हमने इसको मुक्ति दे दिया। तो ये पहला पॉइंट जो कैपिटल गेन से टच करता है। अभी हो क्या गया, ये यूनिट्स इसके पास आ गए, पैसे सारे के सारे रिलीज हो गए। अच्छा, अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, बोलेगा यार ये लोन ये 15% पे क्यों दिया आपने, एक काम करता हूं मैं आप लोगों को लोन दे देता हूं। ये एसपीवी को लोन देगा, बिजनेस ट्रस्ट डायरेक्टली एसपीवी को लोन देगा। पकड़ लो 900 करोड़ का, ठीक है ना, सेम अमाउंट का लोन दे देगा एट द रेट ऑफ 8%। इमेजिन करो एट द रेट ऑफ 8%। इससे क्या हो जाएगा, अभी ये जो एसपीवी है इसने जो बैंक से 15% का जो लोन लिया था, अननेसेसरी पैसा जो बाहर जा रहा था, तो पहले तो ये 15% का जो लोन है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और 8% का लोन बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो इस एसपीवी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और ये 8% कहीं बाहर नहीं जा रहा है, 8% तो बिजनेस ट्रस्ट के पास ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा बिजनेस ट्रस्ट ने लगाया था। अब मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, आपको साइकिल समझ में आना चाहिए कि पैसा कहां से कहां मूव हुआ, ठीक है ना, पैसा कहां चालू हुआ और कहां चला गया। तो सबसे पहले तो ये हम लोग है, समझो ये हम इंडिविजुअल्स लोग हैं या कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। हमने पैसा लगाया बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा लगाया एसपीवी में, एसपीवी ने पैसा लगाया रियल एस्टेट में। ये समझ में आ रहा है आपको पैसा कैसे गया? छोटे छोटे लोगों ने एक बिजनेस ट्रस्ट बनाया, रीट बनाया, रीट ने पैसा लगाया एसपीवी में, एसपीवी ने रियल एस्टेट में। बोलो ये समझा आप लोगों को? अरे रुपया तो देखो कहां से जा रहा है। हाँ, अब देखो, अब रियल एस्टेट क्या करेगा, रियल एस्टेट रेंटल इनकम कमाएगा। रियल एस्टेट आपके पास है, आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के रखा है, 1000 ऑफिसेज बना के रखे, तो आपको रेंटल इनकम आएगा हर साल। तो ये रेंटल इनकम जाएगा एसपीवी के पास। फिर सर, तो ये एसपीवी ये पैसा जमा करेगी, अपने पास थोड़ी ना क्या रखेगी, अपने मालिक को देगी। इसका मालिक है बिजनेस ट्रस्ट। तो एसपीवी जो रेंटल इनकम आया वो बिजनेस ट्रस्ट को देगा। एसपीवी क्योंकि एक कंपनी है, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे देगी। और क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी को लोन दिया था टू रिपे द बैंक का लोन, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगी। तो तीन मोटा मोटी इनकम आपको समझने यहाँ पे जो बिजनेस ट्रस्ट कमाती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम, रीट, ये तीन बड़े बड़े इनकम कमाती है। उसके अलावा कैपिटल गेन वगैरह छोटे मोटे इनकम भी कमाती है। लेकिन क्या ये पैसा बिजनेस ट्रस्ट ने अपने लिए कमाया? हेलो, क्या ये पैसा बिजनेस ट्रस्ट ने खुद के लिए कमाया है क्या? नो, इन्वेस्टर। अरे बाबा, ये तो इन्वेस्टर्स के लिए कमाया था ना, वेरी गुड टाइप, ठीक है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए कमाया था। और मैंने अभी आपको सेबी का गाइडलाइंस भी दिखाया ना कि मिनिमम 90% जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए ना इन्वेस्टर के हाथ में। अल्टीमेट इन्वेस्टर बाबा, पैसा तो इनका है ना, समझा? अल्टीमेट पैसा तो इन्वेस्टर्स का है ना, जो भी रिटर्न आता है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो पैसा इन्वेस्टर्स के हाथ में जाना चाहिए। तो अभी आपको इनकम कौन से जा रहे हैं ना वो देखो। यहाँ पे पहली बात की गई है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट इनकम के बारे में बताऊंगा आपको। फिर डिविडेंड इनकम के बारे में बात बताऊंगा आपको। फिर आपको मैं
ये भी डिविडेंड इनकम का ही है। और फिर मैं आपको अदर इनकम के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। रेंटल इनकम किधर चला गया, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, ये रेंटल है, है इसमें, ठीक है। ये देखो गेम, देखो अभी टैक्स का और टीडीएस का आपको बहुत अलर्टनेस आपका बहुत हाई रखना पड़ेगा यहाँ पे टैक्स और टीडीएस समझने के लिए। एसपीवी मतलब कंपनी जो रियल एस्टेट में पैसे लगाती है और पैसा कमाती है, ये एक कंपनी है, ठीक है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब हुआ क्या, यूनिट होल्डर मतलब वो सारे इन्वेस्टर लोग, ये हम लोग, ठीक है ना। हमने पैसे इन्वेस्ट किए कहां पे, रीट में या इनविट में, बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट ने वही पैसा आगे लोन करके एसपीवी को दे दिया। एसपीवी इसका इंटरेस्ट जो भी आ रहा है इंटरेस्ट वो बिजनेस ट्रस्ट को देगा, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट वो इंटरेस्ट अपने पास नहीं रखेगा, बिजनेस ट्रस्ट वो इंटरेस्ट पास ऑन कर देगा यूनिट होल्डर के हाथ में। ये पहले समझा क्या, एरो समझा आप लोगों को, एरो समझे क्या ये वाले सारे के सारे, यस, हाँ समझे। चलो अब देखो, आपने इतना तो सुना है ना कि जब भी कोई भी किसी को लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन 194A में टीडीएस कटता है यूजुअली। देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 194A जिसके ऊपर टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट देते हो, आप अगर बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट रखते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो बैंक 194A में टीडीएस डिडक्ट करता है। डू यू नो दिस, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगता है। वेरी गुड, ठीक है ना। अभी मेरी बात समझो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने क्या बोला, क्योंकि ये पैसा बिजनेस ट्रस्ट का है ही नहीं, बिजनेस ट्रस्ट ये पैसा इन्वेस्टर के लिए कमा रही है, तो आप अगर इस पैसे को बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल कर दोगे, बाद में बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को भी देगी तो उसके हाथ में भी यही टैक्सेबल होगा, तो डबल टैक्सेशन हो सकता है ना। एसपीवी ने इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को दिया, बिजनेस ट्रस्ट वही पैसा उठा के यूनिट होल्डर को देने वाली है, अगर दोनों के हाथ में टैक्स होगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, सेम इंटरेस्ट दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, ये आपको समझ में आया। तो अभी देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको रिलैक्सेशन दे दिया, बोला कि भैया ये जो इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट कमा रही है ना, इसको हम एग्जेम्प्ट रख देते, एग्जेम्प्ट, नया सेक्शन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसी, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, ऑब्वियसली जो पेयर है एसपीवी उसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा ना। बोलो क्या ये दो सेक्शन समझा आप लोगों को, ये जल्दी बोलो। हाँ ये दो सेक्शन समझा ना। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्यों एग्जम्प्ट है सर, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट को ना यहाँ पे हम बोलते हैं, बिजनेस ट्रस्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं, एक वर्डिंग है इंटरेस्ट के लिए, इसको लगा है पास थ्रू स्टेटस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पास थ्रू स्टेटस, एक हाथ से इंटरेस्ट लो दूसरे हाथ से इंटरेस्ट दे दो, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पास थ्रू स्टेटस है, ये जैसा इंटरेस्ट आया वैसे आगे जाने वाला है, तो हमने इसके हाथ में टैक्स नहीं किया, हमने इसको यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया है 115 यूए इस सेक्शन में। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, ये अमाउंट यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, इंटरेस्ट कंपोनेंट जो भी जाएगा उसको वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और क्योंकि ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, बिजनेस ट्रस्ट ये पैसा देने के टाइम पे उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 115 LBA। ये सारे बड़े बड़े नए इंटरनेशनल टैक्सेशन से कनेक्टेड आप लोगों को नए नए सेक्शंस यहाँ पे देखने मिलेंगे, बड़ी कॉन्सेप्ट का। बोलो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, मैंने आपको 2 बार पढ़ाना है इसलिए ना 2 बार चार्ट यहाँ पे ले लिया। देखो फिर से बताता हूं हुआ क्या, सबसे पहले सर बिजनेस ट्रस्ट ने पैसे जमा किए इन्वेस्टर से, वो पैसे उसने स्पॉन्सर को दिए या डायरेक्टली एसपीवी में उनको पैसे लगाने हैं। स्पॉन्सर को उसने समझा कि देख तेरा प्रोजेक्ट तो अकेले चलाएगा तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो एक काम कर तो हमारे साथ काम करना चालू कर दे। ओके, तो स्पॉन्सर के शेयर्स ले लिए अपने, उसको यूनिट दे दिए,
इसको हमने कैपिटल गेन में से बाहर निकाल दिया। अब इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली होल्ड कर रहा है बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में, तो उस बहुत अच्छा पैसा कमा रहे वो लोग, ठीक है ना। तो पैसे का जो भी पैसा कमा रहे, जो भी फॉर्म में कमा रहे, तो पहला तो फॉर्म हमने इंटरेस्ट का सोचना है। सर यहाँ पे यूनिट होल्डर्स ने, ये सारे यूनिट होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट ने इसको लोन के फॉर्म में दे दिया एसपीवी को, एसपीवी ने बैंक का लोन रिपे कर दिया, और जो बचा हुआ पैसा है उसमें से जो भी उसने पैसा प्रोजेक्ट में लगाया, उससे जो उसको रिटर्न आता है उसमें से उसने इंटरेस्ट देना चालू किया बिजनेस ट्रस्ट को। बिजनेस ट्रस्ट को लगाए पास थ्रू स्टेटस, तो पास थ्रू स्टेटस लगने की वजह से उसके हाथ में जो इनकम आता है वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि डबल टैक्सेशन ना हो जाए, क्योंकि ये इनकम इसके हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसी, टीडीएस अंडर 194 ये नहीं लगेगा, और ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट वो आगे यूनिट होल्डर को देगा, अल्टीमेट इन्वेस्टर को देगा, तभी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा 115 यूएमए, और क्योंकि उसके हाथ में टैक्सेबल है 194 एलबीए में इंटरेस्ट का ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट का गेम समझ में आया आपको?